السلام علیکم ناظرین، پٹ سلطانی بس سٹاپ پر سردار صفدر خان ایڈوکیٹ کی طرف سے روڈ بند کرنے کی کال دی گئی تھی، جس پر یہاں ایک بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوا ہے۔ مظاہرین بہت بڑی تعداد میں جمع ہو گئے تھے اور وہ وابٹا کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، حکومت وقت کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ یہ مناظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ احتجاج کے دوران ایس ٹی او وابٹا تشریف لائے، پھر سردار صفدر خان صاحب نے ان سے مذاکرات کیے۔ پٹ سلطانی کی دیگر مقامی سیاسی قیادت بھی مذاکرات میں موجود تھی۔ مذاکرات کے بعد سردار صفدر خان ایڈوکیٹ نے اپنے اگلے لائحہ عمل کا اعلان کیا اور احتجاج ختم کر دیا۔ اس حوالے سے واحد صاحب جندال نے ایک رپورٹ تیار کی ہے جو کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ میں چی کروں تو پھر بات کرنا، لیکن کوئی بندہ کوئی سیاسی اس پر جو ابھی کیش کر رہے ہیں کہ ابھی یہ کریں جی، وہ کریں جی، وہ کریں جی، یہ کریں جی، ہمارے معاملات جس بات پہ پہنچیں گے پس پردہ بذریعہ فون آپ ہمارے ساتھ جس بات پہ پہنچیں گے وہ میدان میں آ کے کرو گے تو ہم آپ کی بات مانیں گے، میدان میں نہیں آؤ گے گھاٹ روڈ سارا دن بند رکھوں گا۔ اور جو آنے والے لوگ ہیں وہ یہ یاد رکھیں آپ کے کھانے کا بندوبست میں نے کل سے کیے ہوئے، اگر روڈ ہمیں بند کیا آپ کو کھانا یہاں پہ ملے گا، سب کچھ انشاءاللہ اللہ پرووائڈ کرے گا اور میں بندوبست کر کے بیٹھا ہوں۔ ہمارے کچھ باتوں پہ معاملات چل رہے ہیں، آپ کو ساتھ بالکل واضح بات کر دینا چاہتا ہوں، جس میں کچھ ابھی چونکہ یہاں ہماری کی بات ہے کہ ہم لوگ سیاست ہمیں کھا گئی ہے، کوئی ادھر سے انوالو ہو جاتا ہے، کوئی ادھر سے انوالو ہو جاتا ہے۔ صفدر خان کسی سیاست کو نہیں مانتا، آپ جو ظلم ہوا ہے اس پہ آ کے ہمیں جواب دیں گے، ہم آپ کی رسپیکٹ کریں گے۔ اگر آپ ہمیں جواب نہیں دیں گے پھر ہم آپ کو گھسیٹ کے بھی لائیں گے، دیکھتا ہوں آپ آتے کیسے۔ تو شہیر بھائی لازم نہیں حیات میں احباب کا ہجوم، لازم نہیں حیات میں احباب کا ہجوم، مل جائے وفادار تو ایک شخص بہت ہے۔ یاد رکھیے کچھ لوگ اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں شہیر سالوی صاحب کا یہاں پہ آنا اور ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ پروگرام کوئی سیاسی ظلم کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ شہیر بھائی آج آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تو یاد رکھیے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوا کریں جو آپ کے ساتھ کھڑا ہو۔ یہ کل بھی میں نے کہا تھا ایک ریلی کے اندر کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ میں اس بات پہ قائم ہوں، نون کی حکومت ہو، پی پی کی حکومت ہو، قوم لیگ کی حکومت ہو، پی ٹی آئی کی حکومت ہو، سارے مطلب نکال کے پرے ہو جاتے ہیں۔ یہ زندگی میں یاد رکھیے کہ قوم پہ جب مشکل وقت آتے ہیں تو کوئی کھڑا ہوتا ہے، اور یاد رکھیے اپنے آپ کو پہچانیے۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق الله العظيم۔ لفظ میرے ہیں بات ان کی، چھڑ جائے جب ذکر ان کا، چھڑ جائے جب ذکر ان کا، لگتی ہے کائنات ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی۔ تب اٹھے گا سر ان کا، تب اٹھے گا سر ان کا، مانی گئی جب بات ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی۔ حسن حسین ہے پھول ان
हसन हुसैन हैं फूल उनके, उनमें है आदात उनकी, लफ्ज़ मेरे हैं बात उनकी। अहले नबी और अहले बैत, अहले नबी और अहले बैत, पाक है सब सादात उनकी, लफ्ज़ मेरे हैं बात उनकी। ना आखना वोट उस दो जो बंदे ना पुत्र होवे कल तुहाडे नाल आण के खड़े। आज शहीद हैदर सियालवी तुहाडे नाल धुप्प ते आण के तुहाडे नाल शहीद हैदर सियालवी खड़े। कल मैं तुसां आखी पई नहीं वांझ के वोट मलो जमशेद साहब पाओ कहें पावने लोड़ नहीं, जेड़ा ना खड़े उस नाल खड़ो, जेड़ा नाल टुरे उस नाल टुरो, जेड़ा नाल तुहाडे आवाज़ मारो ते नाल खड़ा हो वजे उस नाल लबैक करो। ग्राएं च होवे, चेयरमैन ना होवे, काउंसलर ना होवे, या MNA ना होवे या MP ना होवे, टुरो उस नाल जेड़ा तुहाडे नाल टुरे। दूई गल, कल सरदार सलीम हैदर साहब आए, शहीद हैदर सियालवी साहब कल राजा सरदार सलीम हैदर साहब आए, उन्होंने भी सेम गल की। उन्होंने मैं आखा इतने लोगों ने ज्यादती हुई पी, बिल आए पैन, उन्होंने बिल भेजे, उन्होंने बिल एक नंबर पर WhatsApp कराए। राजा परवेज अशरफ जो कैनेडा च मौजूद है, शहीर भाई राजा परवेज अशरफ जो कैनेडा च मौजूद है, राजा परवेज अशरफ आका कि मैं एक हफ्ते बाद पाकिस्तान वापसी वे। कितने दिनों बाद? एक हफ्ते बाद। उन्होंने कहा जी पिंड सुल्तानी ने लोगों सारा दसो जेडे गरीब ग्रुप लोग उन्होंने बिल जमा ना कराए। शायद वाली गल इस गल बननी या नहीं बननी, लेकिन फिलहाल गल है ठीक है जी। जेडे गरीब ग्रुप लोग उन्हें बिल असी दुरुस्त करसा भेज दसा, अड्डे जर मुतालबात तो यही ही हूँ असा को कलाशन को पता नहीं रखियो तुसा फैर मारने नसी आखने ज्यादती हुई पी इसे दुरुस्त करो, ये ज्यादती हुई पी इसे ठीक करो, ये जेड़ा मुतालबा वे। राजा परवेज अशरफ कहा कि मैं 7 दिन बाद वापस आ जी पाकिस्तान, और वापस आके पाकिस्तान राजा परवेज अशरफ कहा कि मैं कौमी असम्बली ने अंदर करारदाद पेश करके डिस्ट्रिक्ट अटक आफत ज़िला करार दे के, क्योंकि तो बीमारी आई पई, जानवर मरने पे, लोगों की हालत माड़ी हुई पई। उस कहा कि मैं थोड़े नाल खड़ा हो सा और कोशिश ही करे कि थोड़े बिल माफ़ भी हों। अच्छे काम तो मुस्लिम लीग नून होवे अप्रीशिएट करने हैं, पीपल्स पार्टी अड्डे नाल खड़े असी अप्रीशिएट करने हैं, PTI खड़े हो भाई असां ते मफाद अपना में। मैं तुसा कल भी आख्या भी उस नाल खड़े करो जेड़ा तुहाडे नाल खड़े, को मैंने मामा लगना PTI वाले ते पीपल पार्टी वाले। जेड़ा नाल टुरे उसने नाल टुरो, जेड़ा नाल तुहाडे खड़ना आन के उसने नाल खड़ो। सारी जिंदगी मफाद विच फलाने मलक साहब आका जी तेज करने पे, फलाने कोई मलक चौधरी आज आन के खड़ो ना मलक, कोई बिल देन ना, सब तुरखान नहीं है बचत यार औकात में नहीं है कुछ, कोई 10-50 हज़ार नहीं गल होवे अल्लाह गवावे, मैं 50,000 लख पहले भर वही यार 2-4 बंदे जिन पिंड सुल्तानी नहीं जना मैं कहा भी तुहाडे बिल तुहाडे कोल ना होए तो मैं दे देसा या दिवा देसा। शहीद भाई खड़े वैन, मैं इन्होंने कल इन्हें मैं शामी कॉल की बिल पऊँ आए पैन, मैं कहा तुम खड़ पैं जो 3 बंदे ने बिल दो ना, इन्हें मैं कहा 3 ने आको या मैं 5 ने दे देसा यार। गरीब बंदे मारे तो असी खड़े हुए हैं। सरदार सलीम हैदर आए जी कल, उन्हें आखा भी कभी कोई गरीब बंदा ये जना नजर आया जिसने बिल जिस को 2-3 5,000 देने जोगा नहीं यार। हूँ मैं कदे आखी शहीर पाई तुम गरीबों ने बिल देना शुरू कर दो। सरदार सलीम हैदर आखी बिल देने तो हर बंदा गरीब है, मैं सफेद हर बंदा गरीब है, मैं घर से बिजली कोई नहीं, मैं ना आख पहले मैं बिजली लवा के दो, बिल वाली गल बात चो सी ठीक है। लिहाजा पोजीशन ही वे अड्डी कोई सियासी व्यवस्था नहीं, जितने भी हैं उन सारे अड्डे मारे मौजे सन, जेड़ा अड्डे नाल खड़ा हो सी असी उसने नाल खड़े हो सा। बाकी रही गल एक कुछ लोग आखने पैन भाई इंज होवे सी मैंने काल ते तुसी लोग आए हो, अगर अड्डे मजाकरात कामयाब होए तो बिस्मिल्लाह, नाकाम हो गए किसी बंदे या कोई बंदा हाथ न ले सी, सफदर खान हाज़र है, मैना खून हाज़र है, जे कुछ करना पे गिरफ्तारी देनी पई मैं देसा, रोड बंद करना पे तो मैं तुसा काल देसा, कदे पिछे ना हटने ते मरने मारने बगैर असा तो हटा ही कोई नहीं रखना ठीक है। बाकी रही पुलिस मैं सेना एतमाद के बंदे पता जो रचे पैन आखन कुछ करो यार अड्डी जान भी निकल आवे, सुन पे हो पुलिस अड्डी वे, इदारे अड्डे वन, SDO अड्डा वे, एक्सीएन भी अड्डा वे, अड्डे विच वन अड्डे ही दियाँ पुत्र पढ़ लिख के कोई पुलिस च लगागा, कोई फौज च लगागा, कोई नेवी च लगागा, एयरफोर्स च लगागा। असा अपने धियाँ पुत्रा ते अपने भैनों ने भरावां ने खिलाफ नहीं लड़ना, असा लड़ना उस जुल्म ने खिलाफ। यार तको 2300 रुपया बिल है, 43 4600 उन्हें किया इंजे भी उतो बिल लगा 2200
उत्ते टोटल लिखा पा मौजूदा बिल 2200 तले विचकार TPF करके ना या लिखा ने फ्यूल एडजस्टमेंट उत्ते बिल लिखा ने 2200 तले बात लिखा ने 2200 कुल पा के 4500 4800 करता। सर्फशुदा एक बंदा लिखना है कि ना मैं बिल पढ़ा टोटल सर्फशुदा यूनिट 88 कितनी 88 मौजूदा बिल 1900 कुछ रुपए फ्यूल एडजस्टमेंट 3500 कुछ रुपए कुल बिल 6800 इतने रुपए ठीक है जी 5500 इतने रुपए यार इतनी नहीं आई पई असी मुल्क मारे कुर्बानियां देने मारे तैयार हों मामियों के तरीके ना ते गिनो यार तो चोरियां करनी शुरू करतियां मुल्क असी कह देवां सुबह तो गिन के शाम तक जे चीनी गिने तो उस ते टैक्स जे घ्यो गिने तो उस ते टैक्स पेट्रोल गिने तो उस ते टैक्स गड्डी गिने तो उस ते टैक्स जुत्ती गिने तो उस ते टैक्स कपड़ा गिने तो उस ते टैक्स दवाई गिने तो उस ते टैक्स घग्गी गिने तो उस ते टैक्स एक शै है जी दसो जिस ते तुसा टैक्स ना लाया होवे पानी भी पीने तो उससे भी टैक्स कोई एक है जी शायद दसो जिस ते तुसा टैक्स ना लाया होवे जो तो मेल मंडी ते मैंने उत्ते 4-5 डके तोरे पहले बैठ वैन कैपिटल अथॉरिटी फलानी जी दे 100 रुपए 500 रुपए मां दो जी यार हार जाई टैक्स जिते तुसा जा तकी मच्छर वाली पुड़ी ना मच्छर लड़ना पाया ये पुड़ी 2 रुपए नहीं हुण तुसा दा नहीं कर छोड़ी पे ना दा नहीं दो विचों 8 रुपए तो भी कमाओ टैक्स दे के सुजे पे हैं गल है सीधी कोई MNA होवे कोई MP होवे तहसील जान ना होवे अटक ना होवे चकवाल ना होवे जेलम ना होवे असी भाईओ उसने नाल जेड़ा आडे नाल हो सी सियासी वाबस्तगी कोई नहीं इस मामले च कोई सियासी वाबस्तगी नहीं सियासी वाबस्तगी होवे मैं इस धुप्प च खड़ना अल्लाह ने बंदे मेरे घर ते बिजली कोई नहीं मैं तो 2 चूहे ला के बैटरी से पक्का चला गई ना दिहाड़ी प्लेट रखी हुई धुप्प ते चार्ज करना राती का मैं चला गई ना दिहाड़ी फिर टोना रहना मैंने घर ते यार लाइट कोई नहीं 2 चूहे ला के मैं लाइट भी ला गई ना ठीक है कोई सियासी व्यवस्था नहीं ये जुल्म होया हर बंदे नाल होया कोई आना जलवालो निकल के अगर सौड़ ना पवे तो कोई आना बंदा चाचा और निकल सौड़े नाल आए ना खुशी नाल आयो बिल्कुल खुशी ना वो मैंने भराओ इस धुप्पा च खलना सुकला नहीं सौड़ पवे तो असी सौड़े ना निकले पाए वह तक ने सियासत ना निकले पाए लानत पाओ सियासत ते ठीक है सियासत वाली जाई तो नहीं सियासत उस जाई तो नहीं जिस जाई ते ठुके सियासत ने तेड़े आए तो सियासत करसा मैं तो इलेक्शन लड़ना कोई नहीं कुछ लोग इवें नेक बखुद भाई इंज करे सुनते होंज करे दो भाई लानत पाओ सियासत पाकिस्तान नहीं केड़ी सियासत है इतने आन के मैं जी इंज कर वैसों तो इंज कर वैसों मैं ना भी ना गिना खुदा गवावे मैं उसनी सपोर्ट करे सा जड़ा 1 नंबर बंदा हो सी मैं उसनी सपोर्ट करे सा जड़ा आडे नाल खड़ा हो सी मैं पार्टी वापस के तो हट के सोचने वाला बंदा मैं तो कल भी आका इस गल की जड़ा नाल टोरे उसने नाल टोरे करो जेड़ा नाल खड़े उसने ना खड़े करो इंज नहीं भाई मैं नाल नज़ीर टुरना पाया मैं मान के वोट बशीर दे आवी नहीं जेड़ा तुड़ नाल धुप्पा च आवे गर्मी च आवे सर्दी च आवे उस नाल टोरे करो बाकी कोई बंदा परेशान ना हो बुजुर्ग बंदे जितने भी हैं छावत लगे वजो जिसे लोड़ पौसी ये बड़े बड़े बाबे सारे छावत लगे वजो कोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बड़े बड़े बंदे छावत लगे आओ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद व असहाब मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। मोहब्बत कौन करता है सियासत कौन करता है मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है हमी ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं बगावत कौन करता है। मैं अपने भाई की बात को आगे बढ़ाऊंगा हुकामे बाला से ये कहना चाहता हूँ कि IMF और वर्ल्ड बैंक की गुलामी करो तुम लोग और तुम्हारे टैक्स का बोझ भरे मेरे इलाके की गरीब आवाम अमेरिका के तलवे पिछले 70 सालों से चाटो तुम लोग और उसका बोझ भरे वो बंदा जिसके घर की टोटल आमदनी 8,000 रुपये और उसका जो बिजली का बिल है वो 20,000 रुपये आ रहा है। शर्म से डूब मरने का मकाम है इन लोगों के लिए। मैं ये पूछता हूँ कि 1857 की जंग आज़ादी हो या 1920 की तहरीक खिलाफत हो जिन जिन लोगों ने मुसलमानों से गद्दारियाँ की थी जिन जिन लोगों ने अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाए थे और उसके एवज उन्हें जागीरें मिली थी 1947 से लेके आज तक वो मसरत पे मौजूद हैं। 5 साल वो हुकूमत करते हैं और 5 साल बीवी बच्चों के साथ फैमिली पैकेज लेके मुल्क से बाहर दफा हो जाते हैं। उनको इस अवाम का क्या खर्च है? ये जी रही है, ये मर रही है। उनको क्या लगे जिनके बच्चे इंग्लैंड में बैठे हैं, जिनके बच्चे अमेरिका में बैठे हैं, जिनके बच्चे दुबई में बैठे हैं। 5 साल रियासत को ब्लैकमेल करेंगे बाहर बैठ के। 5 साल आके नहीं गरीबों को, हारियों को,
मजदूरों को, किसानों को ट्रक की बत्ती के पीछे से लगाएंगे। मैं आज, मेरे भाई का हुक्म था, मैं कहता हूँ अगर ये मुझे ये कहे कि आज रात तक इधर रहना है, कल भी इधर रहना है, मैं अपने भाई के हुक्म की तामील करूँगा इंशाअल्लाह ताला। मैं दूसरी बात कहता हूँ, दोस्ताने ज़ीवकार यहाँ आते हुए मैं सोच रहा था कि ये एक गांव, दो गांव या एक तहसील का मामला नहीं। मैंने अपने पूरी टीम से मशावरत की, गिलगित से लेकर कराची तक मशावरत की, और आज मैं यहाँ जंड में खड़े होकर ये ऐलान करता हूँ कि कल इंशाल्लाह पाकिस्तान के हर शहर में मुल्की एहतजाज का हम लोग अनाउंस करते हैं इंशाल्लाह ताला। जो तहरीक यहाँ इस तहसील से शुरू हुई, जो तहरीक यहाँ एक ऐसे गांव से शुरू हुई जो गाजी और शहीदों की धरती है, सबसे ज़्यादा शहीद मेरे वतन अजीज़ को इन लोगों ने दिए। अब इंशाअल्लाह ताला इन अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वालों का वक्त आ चुका है कि अवाम इससे सड़कों पे निकल के अपना हक छीन के लेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं आप लोगों से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला देखें, जब आप गवर्नमेंट में नहीं होते आप एहतजाज कर सकते हैं, अपने हक की आवाज़ उठा सकते हैं। जो हमारे इख्तियार में हुआ इंशाअल्लाह ताला आखिरी हद तक जाएंगे। पहले भी वतन के अंदर मौजूद हर किस्म के फ़िरौन से, अमरीकी दलाल से हम लोगों ने ऐलान जंग किया था, हम अब भी करते हैं। ये पर्चों से डराएंगे, तुम काटो FIR, मैं उसे अपने घर में फ्रेम करके लगाऊंगा, ये हमारे लिए तमगे से कम नहीं होती इंशाअल्लाह ताला। हक बात पे कट जाए, हक बात पे कटती है तो कट जाए जुबां मेरी, इजहार तो करेगा जो टपकेगा लहू मेरा। मुझे ये बुजुर्ग कह रहे थे कि आप सवाल तो करो कि यार तुम लोगों के वजारतों के दफ्तरों में 6-6 AC लगे हुए हैं, उनका बिल तुम्हारा बाप देता है, हम देते हैं। तुम्हारे बीवी बच्चों की ऐशी और उनके आगे 6-6 प्रोटोकॉल की गाड़ियां, उनका बिल तुम्हारा बाप देता है, वजीरों पूछो, हम देते हैं। तो फिर जिसका 2-2 हज़ार बिल आता था उसे 12-12, 14-14 हज़ार का बिल दोगे। एक जानवर पे, ये जलवाल माड़ी की बात है, मुझे कल खबर मिली, एक औरत थी बेचारी, बेवा थी, उसकी एक ही जानवर उसके पास था, उसी का दूध बेचती थी, वो भी मर गया। और हुकामे बाला अपनी हुकूमत के उसमें एक दूसरे पे पर्चे काटने से बाज नहीं आ रहे। किसी को गर्ज नहीं है कि बलूचिस्तान में क्या है, साउथ पंजाब सारा डूब गया है। अब अवाम को फैसला करना है। इनसे पूछे कि जब हम लोग मर रहे थे, जब हमारी आवाम खुदकुशियां कर रही थी, जब हमारे जानवर मर रहे थे, तब तुम लोग कहाँ थे? पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। सबसे पहले मैं उस ज़ात पाक का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने सबसे पहले हमें मुसलमानों के घर में पैदा किया। उसके बाद मैं उस ज़ात का शुक्रिया इस बात पे अदा करता हूँ जिसने हमें इस्लामी मुमलकत खुदादाद बख्शी। मैं आज इसलिए यहाँ पे आया हूँ कि यहाँ पे PNP के चेयरमैन शहीद सियालवी साहब, उन्होंने मुझे कहा जी को 2 बजे वहाँ पे जाना है। मैंने कहा सर ये तो 2 बजे का टाइम है, अगर रात 2 बजे भी मुझे जाना पड़ेगा तो मैं आपके साथ हाजिर हूँ। मैं आज आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग जुल्म के खिलाफ इस गर्मी में यहाँ पे खड़े हैं। अल्लाह ताला आपको इसके एवज जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको तीनों दुनिया में इज़्ज़त अता फरमाए और आखिरत में भी इज़्ज़त अता फरमाए। आज हमारे मुल्क में क्या हो रहा है ये आपको पता है। बात ये है कि यहाँ पे जो मुल्क की कंडीशन है, कौन है जो कहता है जी कि मैं पाक साफ हूँ, कौन कहता है जी कि मैं अच्छा हूँ। जो चोर हैं, जो जालिम हैं, जिनको नहीं पता है कि सवाए अपनी सीटों के दुनिया में क्या हो रहा है। आज हमारे पंजाब में को छोड़कर हमारे गाँव को देखें,
वहाँ पे लोगों के जो जानवर हैं वो मर रहे हैं, किसी को कोई गरज वास्ता नहीं है। इनसे पूछो कि भाई आप हुकूमत में क्या करते हो। वो चाहते हैं कि हम इस मुल्क को लूटें, इसलिए कि ये उनके बाप ने बनाया है। अगर तुम्हारे बाप ने बनाया है तो इस मुल्क को जो है ले जाओ। अगर गयूर अवाम ने बनाया है, गयूर अवाम ने कुर्बानियाँ दी हैं, तो ये मुल्क इंशाअल्लाह ताला कायम रहेगा। तुम कुत्तों की तरह दफा हो जाओगे। यहाँ जैसे कि कुछ घूम रहे हैं, कोई बरतानिया में है, कोई अमेरिका में है, कहाँ पे है, सब चोर कहते हैं कि मेरे बच्चे को ये दे दो, मेरी बच्ची को ये दे दो। मैं उसको कहता हूँ खुदारा इस मुल्क को लाकानूनियत में मत डालो। ये मुल्क आम नहीं है। इसके लिए हम जैसे ही नहीं, ये सब जो लोग खड़े हैं, जितने गरीब लोग खड़े हैं, इसके लिए जान की कुर्बानियाँ देंगे। ये किसी को बेचने नहीं देंगे। और IMF और अमेरिका तुम जैसे गद्दार और बेगैरत भी सुन लें, इस मुल्क के लिए इस अवाम की जानें हर वक्त तैयार हैं और हर वक्त तैयार रहेंगी। और ये मत सोचो कि हम इस पर कब्जा करेंगे। अगर कब्जा तुमने किया है तो वो बेगैरतों के दिलों पे किया है, गयूर अवाम के दिलों पे कभी भी नहीं कर सकते। आखिरकार मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जितने ये बिल दिए हैं, क्या तुम अपना नहीं करते हो, जो बिल चोरी नहीं करते हो? जब तुम्हारे जड़ से जुलूस होते हैं तुम चोरी नहीं करते हो। ये गरीब तो हर वक्त बिल देने वाले हैं। किसी गरीब का बिल कभी एक माह भी डिले नहीं हुआ। आप लोग क्या करते हैं? कर लो जो कुछ करना है। अल्लाह हमारा भी मददगार है। अगर तुम्हारा शैतान मददगार है तो हमारा रब मददगार है। हमारा रब हम पे करम करेगा। तुम्हारा शैतान जो से हो सकता है वो तुम पे करम कर देखेंगे। उस दिन जीत किसकी होगी? उस दिन जीत इन गयूर अवाम की होगी, किसी बेगैरत की नहीं होगी। आखिरकार मैं ये कहना चाहता हूँ, डट जाओ, डट जाओ, कुछ नहीं होगा। जितने अदारे हैं ये हमारे हैं। कोई भी अदारा है वो हमारा है। अफवाज पाकिस्तान में भी हम में से गए हैं। उनकी कुर्बानियों को देखो, कभी 2 मर रहे हैं, कभी 4 मर रहे हैं, कभी 10 मर रहे हैं, कभी 12 मर रहे हैं, कभी 15-20 मर रहे हैं। तो हम तो उनकी लाशों की अजमतों को भी सलाम करते हैं, मगर तुम जैसे बेगैरतों का नाम लेना भी गुनाह समझते हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, ऐ बारी ताला हमें अपने कुर्ब में रख, अपनी कुर्बत में ले जा, दीनों दुनिया में भी खुश रख और आखिरत में भी खुश रख। हमें न तो ना ये कोठियाँ चाहिए, ना ये गारें चाहिए, ना ये बरतानिया के महल चाहिए, ना अमेरिका की कोठियाँ चाहिए, ना हमें गोरियाँ चाहिए। हम काले, हमें काले बेहतर है। हमें अगर चाहिए तो हम चाहते हैं हमें सैयद बिलाल हबशी की वो गुलामी नसीब हो, जिसके लिए हम दीनों दुनिया पे सफ़र कर सकें। इंशाअल्लाह बेहतरीन हल निकल सी। अगर कहीं जाई तो हल अड्डा पाए जो तरीके ना निकला, असी एहतजाज खत्म कर सा। और अड्डा एहतजाज होना ही जी होना भी तुम इंज कर दो, अगो असी इंज कर दसा। अगर इस गल ते अड्डा कहीं ठीक तरीके ना काम मुका, असी खड़े हुए हैं, असी एहतजाज खत्म कर दसा। अगर अड्डा ठीक तरीके ना खत्म होया, दोबारा भी असी इत्थे ही हाँ। रंगली वाले भी इत्थे हन, कोट छजी जलवाल वाले भी इत्थे हन। इंशाअल्लाह बेहतरीन हल कट के अस एहतजाज खत्म करना है, हमें खत्म नहीं करना इंशाअल्लाह। कई बंदे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मार खावनी पई, थोड़ा भरा हाजुर है, इतने ठोले हैं, कोई गल ही नहीं। खावना भी जानने थोड़ा पे गल में कोई परेशानी है ना। डरने को डरने हैं, ना सोटी को डरने हैं, ना जेल को डरने हैं, ना। मेरे पास बिल थे, काफ़ी सारे बिल मैंने देखे। एक में लगी 116 रुपये 4 पैसे यूनिट, एक में लगी 119 रुपये 3 पैसे। सेम बिल एक बंदे ने एक घर के 2 बिल उठाई, उसमें कीमतें यूनिटों के अलग अलग लगेंगे। ये चक्कर मुझे समझ नहीं, ये क्या चक्कर है? अभी आप हमारे साथ क्या कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं? आप हमें क्या बिल ज़्यादा है और इसमें जो लोग ज़्यादातर कंफ्यूजन है वो फूड प्राइस एडजस्टमेंट है, ये वो ज़्यादा है। और एक कंफ्यूजन लोगों में ये भी हुई है कि जो पहले कमर्शियल में जो टैक्स लगा था उसका कोई ऐलान किया वो खत्म हो गया। और एक जो ये पहले से चलता आ रहा है। अगर इसकी कुछ तफसील मैं आपको बता दूँ कि एक तो ये है कि हमें ये भी एहसास है कि लोगों को मुश्किलात का सामना है।
गरीब आदमी का एहसास है, हर जो अवाम में एहसास है उनके दिल ज़्यादा है। और मेरी वजह से जितना भी किसी को रिलीफ मिल सके मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं न करूँ जो मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा। और ये जो एक इसका हमारा कोई इसमें हमारा कोई किरदार नहीं है इसमें कि हम इसको कुछ कम करें या ख़त्म करें, ठीक है। और इसका ये फुल प्राइस एडजस्टमेंट ये आपको तफसील में जाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए आप लोगों को कि पाकिस्तान में जो बिजली बनती है वो पानी से 20% बनती है, पहाड़ी से बनती है, ये पानी से बनती है, बीच और पाकिस्तान की बात की इस तरफ नहीं कि उधर कोई पिशावर वाले अटक वाले कहेंगे तो पानी से बन जाएंगे, उधर फिर से बन जाएंगे। जो इशू ये हाल पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान में कराची से लेकर तक है। तो खटक साहब मैंने सुना है कि ये जो कारखाने जिन पे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लगती है और कराची की तरफ बेनिफिट होने को शुरू किया था प्रोजेक्ट, ये सर मुद्दा रहता है नहीं फ्यूल प्राइस पाकिस्तान में ये हमारी कराची की कंपनी प्राइवेट है, वो हमारे पास नहीं है, के इलेक्ट्रिक प्राइवेट है। नहीं के इलेक्ट्रिक के पास जो हमारा जो बिजली बन रही है हमारा उनसे कोई तल्लुक नहीं। कहते हैं पानी नहीं यहाँ पे तो पूरे पाकिस्तान के आवाम को नाटक वाले को एक तरह ट्रीट करे, पिशावर वाले को दूसरी तरह और फैसलाबाद इसमें जो है ना फ्यूल ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट अभी जो एक कंफ्यूजन है कि एग्जाम्पल एक महीने का बड़ी बात आप मेरे छोटे भाई, अभी बातें मुझे समझ आपकी आ रही है, लेकिन अभी आप शाह सब बैठे मैंने और उन्होंने नौकरी की है, आप बुला देना मेरे छोटे भाई हैं। मैंने आपको पहले कहा कि आपके पास का काम है, आपको मैं कहूँ कि आप ये कर दें आप वो कर दें, चलिए आपको भी शायद पता है, एक्सील साहब को पता है, हमें एक शायद तसल्ली हो। किसी बंदे ने फ़ोन किया स्पीकर को, ये अशरफ ने कहा जी 7 दिन आपको मैं कह रहा हूँ 7 दिन के बाद शायद आपके नोटिस में कहीं से बात आई है, तो उसने कहा कि 7 दिन के बाद हम अटक वापस जिला करार देंगे, तो करारदाद पेश करते हैं असेंबली में। मैं कनेडा हूँ, उसने मुझे खुद फ़ोन किया, मैं कनेडा हूँ, वापस आके हम आपको जिला करार देते हैं और आपके बिल माफ़ भी होंगे। अभी आपकी एक्सीडेंट साहब के साथ किस बात पे अगर हमारे लोग बिल जमा नहीं कराते, यार इधर कुछ ऐसे लोग हैं, आप मेरे छोटे भाई हैं, मेरी घर बिजली नहीं है, मैं आपको बात करूँ मेरा तो बिल वाला चक्कर है कोई, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे लोग यहाँ पे फिर रहे जो मर रहे हैं, आपके 8-8, 10-10 हज़ार रुपये बिल आ गई है। महकमे में रह के जोड़ जुगाड़ तो सारी कुछ शायद आबिद शाह साहब महकमे में रह के ना पुलिस कभी कभी पकड़ के ले आती है बंदा, ये याद रखिए। वो आके देखते हैं यार ये बच्चे मैट्रिक पास है, ये 10वीं के इम्तहान दिए, इसका मुस्तकबिल ख़राब हो जाएगा, ये जवानियों के पास फिरना तो पकड़ को उठा लेके आती है। कभी कभी ऐसे भी कहते हैं कपड़ लगा के रखूँ हम तुम्हें बाहर नहीं दे रहे, आज के बाद अगर आए तो पढ़ है जी गल। कभी कभी इदारे बड़े बड़े रिस्क ले लेते हैं, कभी कभी इदारे बहुत बड़े बड़े रिस्क ले लेते हैं किसी के फ्यूचर के लिए, यार इसका फ्यूचर तबाह हो गए, हम रिस्क लेते हैं, होता है ना पावर। एक बंदा है सो वो रात को उसके FIR हो गई 107 107 का कलंदरा हो गया, ऐसे जो कहते हैं यार ये जो बंदा है ये बंदा कमजोर है, ये रात को खाने में रहेगा, सुबह इसकी बेइज्जती होगी, ऐसे जो सब आप जमानत ले लेते हैं, ये चुप करके जमानत ले लेगा। मैं जमानत पे छोड़ रहा हूँ, अदालत कुछ नहीं की, इनके इख्तियारात हैं। अभी मेरे भाई के इख्तियारात कितने हैं आप हमारे साथ, मैं उन लोगों के लिए खड़ा हूँ जिनके 25, 30, 50 हज़ार बिल है ना, जो बर्दाश्त कर सकते हैं उनकी तो बात ही नहीं है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनके काम बर्दाश्त से बाहर हो गए। 8,000, 10,000, 9,000 बिल उनके लिए लोग साइकिलें बेच रहे हैं, तो जहर नहीं होटल देख जाको तो जहर नहीं होटल उस साइकिल बेची का लाभ, साइकिल बेच को सता मैं भेज रहा हूँ। वो लोग यार अगर ये हालात रहे लोग बच्चे भेजेंगे, साइकिल तो छोड़ना। हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अभी आप हमारे साथ किस हद तक कंप्रोमाइज़ करते हैं। एक लारा है मेरा तल्लक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, उन्होंने कहा जी हम ऐसे ऐसे करेंगे। कल मैंने उनको किसी सीधी बात की कि आप हमारे साथ चलें, बात करें, आप हमारे लिए बोले बिस्मिल्लाह हम आपके साथ हैं। उन्होंने कहा जी हम करेंगे। आज उन्होंने कहा कि हम अगले 1 हफ्ते के बाद आपके लिए ये करवाएंगे, ठीक है। अभी भाई हमारे लिए क्या रिलैक्सेशन पैदा कर सकते हैं, आप हमारे लिए क्या सारे लोग कभी हम ये नहीं कहते कि लोग
دیکھیں نا ایک بات ہے, ایک امید کی کرن پیدا ہوئی ہے کہ 8-10 دن کے بعد یہ معاملات ایسے ایسے کر کے ہم نپٹا دیں گے. اعلیٰ لیول پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے کریں گے, یعنی پکی یقین دہانیاں کروائی جا رہی ہے کہ 8 دن بعد ہم یوں کر دیں گے. ہم لوگوں کو یہ تو کہہ سکتے ہیں, یہ ہوتا پختونخوا, میں کہہ دیتا بل نہ دو بھائی, بجلی اتاریں گے کر لیں, سمجھ آئیے. ساری نہیں دے رہے آپ بھی نہ تو دیتی نہیں ہے لوگ. آپ کو پتہ ہے یہ لگے چلے جائے کرلان دی, یہ آپ تھوڑا پھٹک سے پڑے, لوگ دیتے ہی نہیں ہے. بچوں سارا ہم بات رہے ہیں, ہم کبھی ایسی بات نہیں کرتے کہ آپ بل نہ دیں. لیکن نا یہ ہمارا ملک ہے, ہم اگر بل نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ مقروض قومیں بل نہیں دیتی ہیں, مقروض قومیں ٹیکس دے 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 ان کی زندگی ٹیکس دے دے دے. لیکن میرا بھائی یہ کرے, آپ سے بات ہے, رہی بات آپ کو اس بارے میں آپ کی بات ڈیمانڈ آپ کریں میں کر سکتا ہوں, میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہاں میں کر سکتا ہوں. پہلی ڈیمانڈ یہ ہے نا آپ کی, یہاں پہ لوگوں کے بل ہے نا 10,000, ایک کا بل ہے 15,000. اس کے اوپر آگے انہوں نے لگا دیے پلس مقررہ تاریخ تک جمع نہ کرانے کی صورت میں 860 روپے ایکسٹرا. ایک تو مجھے ایکسٹرا والی بات ہے, تھوڑا ہی کرنا ہے. وہی بات ہے نا, جو میرے اختیار میں ہو میں وہی کروں گا. یہ آپ کے اختیار میں ہے. ابھی جو دیکھو نا, جو اتنا ہے کہ ڈیٹ ایکسٹینشن باقی ابھی اگر کوئی بل جمع نہ کرائے اس کے بعد آپ کہیں گے سر ایک ویک کی بات ہے ویسے, ایک ویک. پازیٹو پوائنٹ کیوں نہ کھڑا کرے سر, ٹھیک ہے. کہیں بندے نال کوئی کہیں قسم نہ نعرہ نہ رکھا ویسی مکی اتڑنا گزارش کرنے ہیں سارے پرا غور نہ سننے کی کوشش کرنی. ایس ڈی او صاحب اڈے کو لائن ایک تو ہی ہویا کہ جڑی تھی ڈیٹ بھائی کل آخری ڈیٹ ہے. اس تو بعد کل بابٹا نے 2 بندے کل نہ آئے تو پرسوں آوے سن, ڈیٹ شیٹ بلا نہیں ختم کوئی نہیں ہوئی. جس کو آئے ہوئے اس کو لائے ہوئے ڈیٹ اجے 2-4 دن اور ایکسٹینڈ ہوئی پئی. کل بابٹا نے بندے 2 آسن پنڈ سلطانی اس نے اندر یونین کونسل نے اندر, جس بندے کو 2,000 روپے بل ہے وہ 2,000 جمع کرا دے, 10 دیونے نہیں لوڑ نہیں. جس کو بل نہیں وہ بل جمع ہی نہ کراوے, تار کینڈی بھی نہیں لانی. دو ہی گال سرکاری طور تے ایک بزرگ انہوں نے آکھا بھئی 8 دن تو بعد توڑے بلہ نے معاملے چے اسی کرساں بھئی 8 دن تو بعد اسی کو کروائی کرساں کہ جڑے اتنے معاملات ان ایکسٹرا بلوں نہیں سارے ختم ہوئے سن, یا انج ہوئے سی کہ اگر آفت زدہ قرار دے دینے ڈسٹرکٹ اٹک گا تو اسی بل معاف کر دے ساں. اس گال کی کوئی گارنٹی نہیں بل معاف ہو سن یا نہ ہو سن. لیکن ایک گل ذہن چ رکھو, حکومت آکھنی پئی بھئی اگر آفت زدہ قرار دے دیتا تو بل معاف کر ساں, اگر آفت زدہ قرار نہ دے دیتا تو آخرن بھئی جڑا فالتو ایکسٹرا بل ہے وہ اسی واپس کر گی ساں. ٹھیک ہے جی, کوئی پتہ نہیں یونٹ 3 روپے 4 پیسے ودا کے جو ڈائریکٹر نے فکس کیتا ایسا اسی واپس کر گئے ساں. ایس ٹی صاحب نکل گئے جی اس دے وچ ایک ہے معاملہ ہے جو تساں گل کیتی ہے موجود ہوں. سنو سر میری گل سنو, جس بندے کو بل موجود ہوں کہیں بندے نہیں تار نہیں لانی, ایک تو گھبرنے لوڑ نہیں بھی تار لے ویسی. جس کو بل ہویا نا 2,000 ہے تو یونین کونسل پنڈ سلطانی جان کے 2,000 جمع کرا دے ہونا. جس کو 1,000 ہے, جس کو 500 ہے, جس کو 3,000 ہے, جس کو 5,000 ہے. سر میری ریکویسٹ سن سو میں 30,000 بل سر میں دسن لگا ایک منٹ گل میں مکاؤن دوں سارے اور نہ سن لو پوری کرو گل سنو اوئے گل سن سر ایک یہ بندہ ایک بل اس نے 30,000 ہے, اگر مثال نے طور پہ یہ بل 1,000 جمع کرنا ہے یا 2,000 کرنا ہے تو اس نے بقایا جات کے طرف ویسے جس نے 30,000 بل ہے نا اس کو 2,000 ہے, تسی وانج کے 2 جمع کرا کے انہاں کو ماں وصولی پا دو. اس سے نہیں جمع کرے ہو تو تھوڑی تار نہیں لانی. 2 جائیں تو گل سنو جی, ایک پسال گریڈ اسٹیشن نال تعلق رکھنے والے ایک جنڈ والے نال یہی گل ہے. جی جی بالکل. ہن میں ایک ہی نہیں گل مکاؤن دو تو تھوڑی بات شروع کرن لگا. ٹھیک ہے, ایک ہی نہیں پہلے مکاؤن دو. جڑے اس پلو بندے آئے نا دومیل بھی تٹنا لگنا نا بسال نال. جی جی بس دومیل پنڈ سلطانی گڑی 30 ٹکافسباد جڑے اس نال لگ رہے ہیں. جنہ پنڈ سلطانی نزدیک پونا پنڈ سلطانی آن کے بل جمع کراؤ یونین کونسل چ, جنہ کو پنڈ سلطانی دور ہے ان مٹھیاڑے گریڈ اسٹیشن ہوتے بابٹا نے دفتر چ لگے ونجو.
ਤਾਰ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਦੂਈ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਪੁਰਛੇ ਜੀ ਜਲਵਾਲ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਚੂਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਰੰਗਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਜੰਡ ਤੋਂ ਆਣੀ ਪਈ, ਸੁਣ ਪਏ ਹੋ, ਜਿਤਨੇ ਜੰਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਡ ਬਾਪ ਵਾਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਲੰਗਰ ਉਹ ਜੰਡ ਰੋਡ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਵਾਜ ਕੇ ਦੱਸੋ कै ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ। इतना 15,000 बिल है, उसको कदे 3,000 है, वो 3 जमा करे सी। अगला बिल जड़ा असी ना अगला बिल हुण याद रख, सुन पे गल एरर विच आवे एरर विच आवे जिसको हैं जी ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਛੋੜਦੇ ਪੈਣ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। सर मैं हुण के आखना पिया, अगे बिल अगर सेम आई अरबी ना लफ्ज़ तो नहीं ना, नहीं अरबी दे नहीं, अगर 1900 रुपए इस बार GST टैक्स उस नाल फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लगी पई, अगले बारी बात 1900 लगी भी आवे नहीं, अगली बारी बात 2500 लगा हुआ फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आवे ना। तो सर मैं क्या आखा पई एड़ा एहतजाज जितों से खत्म किया इतों शुरू हो सी अगला ठीक है। असी एहतजाज खत्म नहीं करने पे, एहतजाज मखर करने पे। अगला बिल असी अगर बिल सेम आना जो इस बारी आया असी रोड बंद कर सकते, रोड इन्होंने बाबा भी आन कर सकते।